सतनाम श्री वाहेगुरु दी गुरु गरीब नवाज। जैसो गुरु उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार। नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। इहाँ उहाँ जो काम तेरे। साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बरन न साको। तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकुर ऊंच भगवान आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज। सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी। पतित पावन भगत वशल किरपा निदान चवर छत्र तख दे मालिक गुरता गद्दी ते सबाएमान हलत पलत रखियक सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र दरबार का शिंगार बन बैठे सत्संगी जनों हाजरीदार प्रवान करो और प्यार से आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत दिनों तो प्रारंभ की हुई गाथा नूं मैं फ्राइडे दे शाम तक दे दीवान च संपूर्ण करना लोचदा। दर्द पिजी दास्तान जिन्हों तुसी तकरीबन 1.5 महीने तो सरवण कर रहे हो, बेशक मैं दे शिखर तक ते नहीं पहुंच सकांगा अपने इस पीरियड विच, एक अध्याय दा रह जाएगा। उसनूं फेर किते तुहाडे चरनां च साझा करन दा यतन करांगे। और जिथों दास ने कल दे दीवान विच इस इतिहासक लड़ी नूं छड्डिया सी, मैं उत्थे आप जी ने बिरती नूं लिजाना चाहुंदा। 15 अप्रैल सन 1849 की रात है। 4 चफेरे मौत वर्गा सनाटा है।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਆਬਾਨ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਡਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸ ਟੱਪ ਨੱਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਚੜ ਆਵੇਗੀ, ਕੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕੂ, ਧਾੜਵੀ, ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰਾ ਐਸੀਆਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੱਤ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਡਰ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੀਲ ਦੌੜੀ। ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸਦਾ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸੜਕੜੇ ਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਝਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮਨ ਡਰਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਠੂਆਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਲੋਥ ਇੱਥੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਝੱਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੇੜੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇੜਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗ ਫੁਰਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਬੇੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
महाराणी जिंद कौर ने बेड़े चों छाल मारी ते जिधर नूं दासियां ने दस्सिया सी उधर नूं मूँह चुक लिया। छोटा जिहा एक पिंड नज़र आया, किसी नूं पुछना कीता, भावें उसनूं हिंदी बहुत घट बोलनी आउंदी सी, फिर भी उसने हिंदी विच पुछण दी कोशिश की, जे कौन सा नगर है। पिंड वाले ने किसी ने दस्सिया, कहंदे नूं रामनगर कहते हैं, ये जे रामनगर है। उन्होंने इस गल का यकीन हो गया कि मैं अपने टिकाणे दे उत्ते। फिर उसने किसी शिव दवालिया वालों पूछा कि इत्थे कोई मंदिर है। इशारा किया किसी ने, हाँ पिंड तो बार बार एक मंदिर है, तुसी उत्थे चले जाओ। महाराणी जिंद कौर जदों मंदिर के सामने गई, थके हारे मुसाफिर उस मंदिर च बैठे ने, कोई इधर फिर रहा, कोई उधर नूं फिर रहा। वो थकियां हुई निगाह दे नाल अपनी दासी गोमता नूं वेखण लगी, क्योंकि गोमता ने आख्या सी, महाराणी साहबा मैं इस मंदिर च तुहाडा इंतजार करांगी। पर उन्होंने गोमता किते नजर ना आई। फिर एक साधनी उठी, जिन्हें आण के कोल आण के हौली जी आख्या, महाराणी साहबा माफ करना, पहला जदों मैं तुहानूं मिलदी सां मैं तुहाडे सत्कार सिर झुकाउंदी सां, पर जे मैं हुण तुहाडे सत्कार सिर झुकाया है, सारे लोग मैनूं वेख रहे ने। इन्हां ने यह गल सोचनी है, एक महंतनी एक साधनी किसी सधारण औरत के अगे सिर क्यों झुका रही है। मैं तुहाडी सेवादार तुहाडी दासी गोमती हां। महाराणी जिंद कौर दी धा निकल गई, भुब निकल गई। वो बच्चों वांग महाराणी जिंद कौर दासी गोमता दे गल लग के रो पई। उन्होंने कलावे च लैके जदों दे सिर दे उत्ते हथ गया, कहने लगी, गोमता तेरे ते केस बड़े सुंदर सन, ये जड़ावां दा रूप किवें धारण कर गए। महाराणी जिंद कौर दे सवाल दिते गोमता ने आख्या, कहने लगी, महाराणी साहबा ये दुनिया दियां भुखियां निगाहां मेरे उत्ते पैंदियां सन। मैं अपना बचाव करने दे वास्ते संतनियां दा भेस वटाया, मैं बोड़ का दुध लै लैके अपने वालों नूं ला के उन्होंने मल मल के वटियां बना के जड़ावां बनाईयां। जे मैं सुधारण इस्त्री के तौर देते मंदिर च रहिंदी, शायद मैं अपनी इज्जत ना बचा सकती। इत्थे चंगे तो चंगा इंसान भी आउंदा और घटिया तो घटिया इंसान भी आउंदा। एक इहो बाणा सी जिहदे विच मेरी इज्जत महफूज है। दोवें भैणां गल लग के रज के रोईयां, गल्लां कीतियां। महाराणी जिंद कौर दी हालत वेख के महाराणी गोमता दी दासी, महाराणी जिंद कौर दी दासी गोमता ਉਹਦੇ बार-बार ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ महाराणी ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ महाराणी जिंद कौर ने आख्या, कहने लगे, गोमता जी महाराणी साहबा, कहती मेरी भैन मैनूं भुख बड़ी लगी। जिदन मैं चुनार के किले चो दौड़िया, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाता, मैनूं चाह सी मैं फरार हो जाना, मैनूं खुशी नाल भुख नहीं लगी। मैं सारी रात दौड़ी हाँ, मैं अपने पेट विच एक अन्न दा दाना तक नहीं पाया। हुण भी दोपहर चढ़ आई है, मैनूं बड़ी भुख लगी है, मेरी भैन मेरे वास्ते कुछ खाण दा प्रबंध कर। गोमता दी अखां चों शम शम अथरू वह तुरे। हाथ जोड़ के कहन लगी, महाराणी माफी चाहती हाँ, इस मंदिर का पुजारी जिथे बड़ा रहम दिल है, उत्थे बहुत सख्त सुभाव है। इत्थे जिहड़ा भी मुसाफिर आउंदा उसनूं आप मंगना पैंदा है। मैं अपने हिस्से का खाना लैके खा चुकी हाँ, जे मैं हुण दोबारा खाना लैण वास्ते जावांगी, मैनूं मंदिर का पुजारी खाना नहीं देवेगा। महाराणी जिंद कौर समझ गई, कहन लगी, भैणे हुण मैनूं मंगना पवेगा, मैनूं मंगना नहीं आउंदा। मैं पंजाब देश की महाराणी सां, मैं देना सीखिया है, मैनूं मंगना नहीं आउंदा, मैं किदां मंगांगी।
गोमता ने आख्या महाराणी साहबा तुहाडे नाल मैं चलदी। केलियां दे दरखत सन इस मंदिर विच। गोमता ने एक पत्ता तोड़िया, उहदा चौड़ा जिहा एक टुकड़ा महाराणी जिंद कौरां दे हत्थां दे उत्ते रख दिता। जिंदा ने आख्या, कहन लगे गोमता ये की? महाराणी साहबा हिंदुस्तान है, इथों की बहुती जनता नूं खाना खाण वेले बर्तन भी नसीब नहीं हुंदे, वो केलियां दे पत्तियां दे उत्ते खांदे हन। महाराणी जिंद कौरां ने आख्या, कहन लगे गोमता जिंदगी की असलीयत मैनूं इत्थे आण के पता लगी है। राज महलां च असीं बड़ियां राज भलाई दीयां गल्लां करदे हां, मनुखता की भलाई दीयां गल्लां करदे हां, पर पता लगता है दुनिया किस हाल विच जिउंदी है। गोमता कदी मैं सोने चांदी दे भांडे च खाया करदी सां, अज मैनूं केलियां दे पत्तियां दे उत्ते खाना पवेगा। लाइन विच लग गई महाराणी जिंद कौरां। जदों अपनी वारी आई, पुजारी ने पतीले दे उत्ते ढक्कन दे दिता। यह कल्पना नहीं, असलीयत है। ढक्कन दे दिता। गोमता ने पुजारी नूं आख्या, कहन लगे पुजारी जी ये मेरी साथन है, ये थकी टुटी आई है, इहनूं भुख लगी है, इहदे वास्ते कुछ खाने के लिए दो। ते पुजारी ने आख्या, कहंदा खाना समाप्त हो चुका है, हुण खाना है नहीं। त्रप त्रप करके दोवां दी अखां च हंझू वह तुरे। गोमता ने आख्या, पुजारी जी थोड़ा बहुता जो कुछ भी है दिओ, इनू बड़ी भुख लगी है। पुजारी ने ढक्कन लांदे कीता तो जिहड़ी देग विच चौल बने हुए सन, कुछ सड़े हुए चौल वो देग दे थल्ले दे नाल लगे हुए हैं। उन्हें खुरपा मार के उन्हें चौलों को खुरचिया, वो सड़े हुए चौल वो खुरपे दे उत्ते पा के उन्हें महाराणी जिंद कौरां दे तली दे उत्ते पए हुए केले दे पत्ते दे उत्ते लद दिते। दूजे पतीले चो हर हर दी दाल इन्हां सड़े हुए चौलों दे उत्ते पा दिती। महाराणी जिंद कौरां सड़े हुए चौल हर हर दी दाल लैके बोर्ड दे थड़े दे कोल आण बैठी। अपने हत्थां दे नाल बुरकी भर के जदों खाण लगी, जिन्हें कदी सोने चांदी दे चुमचे नाल खाधा होवे नूं हत्थ नाल खाना नहीं आउंदा। जिहड़ी बुराई वो मूंह तक खाना चाहुंदी सी, सारी उहदे हत्थां चों गिर गई। महाराणी गोमता ने महाराणी दा हाल वेख के कहन लगी, महाराणी साहबा मैं खवाउंदी आ, तुहानूं हत्थ नाल खाना नहीं आउणा। बुरकी भर के महाराणी जिंद कौरां दे मूँह च पाई। कवि ने मौके दे ख्यालात, मौके दे हालात नूं कलम नाल लिखे। ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे ने, इहो मैंने कीता जा रहा। सुनो साथ संगत। पुत दा विछोड़ा हो, पुत दा विछोड़ा
टुटिया मुसाफिर आउंदा है, जिस घर वाले दे कोल जांदा है, घर वाला इंसान पहला उसनूं ये गल पुछदा, दसो छकना की है? थके आए हो, जल छकोगे, चाह छकोगे, प्रशादा छकोगे? इंसान की पहली मंग होंदी है प्रशादा छक लिया जाए, उस तो बाद आराम किया जाए। गुरु सवारी साध संगत, गुरुदेव पिता ने सानू किन्नियां बरकतां दे नाल निवाजिया है। साडे कोल दुनिया का हर सुख है, चंगे तो चंगी गड्डी चढ़न वास्ते, चंगे तो चंगा घर रहन वास्ते, तरह तरह के पदार्थ छकन वास्ते। इन्हां पदार्थां की किते कीमत पुछनी होवे ते किसे भुखे नूं पुछ के वेखो। महाराणी जिंद कौर जिहड़ी हथी दान करदी सी, अज मंग रही है। कई बार गुरु की प्यारियां संगतां गुरु का लंगर छकदियां ने ना, वो लंगर थालियां दे विच वापस बाकी रहन देंदियां, वो झूठ रहन देंदियां। साध संगत, इस लंगर की कदी अहमियत वेखो, किसी भुखे नूं पुछ के वेखो ये लंगर की चीज है, ये पदार्थ की हन, इन्हां दी कीमत की है। तां ते गुरु दे प्यारे जदों लंगर छकदे ने, हाथ जोड़ के परमात्मा का शुकराना करते हैं, महाराज तुसा बख्शिश की है, इजाजत बख्शिश करो प्रशादा छक लिया जाए। छकन तो बाद शुकराना करना साडा दुनियावी लोगों का फर्ज है। जे असीं शुकराना नहीं करते फिर असीं ना शुकरे हाँ। महाराणी जिंद कौर ने शायद कदी इन्नी अहमियत लंगर की नहीं सी समझी, वाधू जी चीज़ां समझिया सन, पर अज दी भुख ने उन्होंने यह दस दिता कि रोटी की चीज होया करती है, भुख की चीज होया करती है और उसकी लोड़ की होया करती है। बैठी हुई है महाराणी जिंद कौर, विचारां दे च गवाची हुई है, कवि के ख्यालात हैं, ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। सुनो साध संगत, जदों महारानी नूं इनकार हो गया ना कि खाना समाप्त हो चुका है, महारानी जिंद कौर ने गोमता का मोढा फड़ के कह लगे, गोमता कई चीज़ों का पता इंसान को जिंदगी का सफर तय करदे लगता है, कई गल्लां दी अहमियत उन्होंने उदों पता लगती है जदों उहदे नाल वापरदी। गोमता ने आख्या, महारानी साहबा मैं समझी नहीं। ते महारानी ने आख्या, कह लगे, गोमता मैं कई बार बचन सरवण किया सी, नजर अपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा, दर मंगण भिख न पाएंदा। परमात्मा की नजर पुठी हो जावे ते फिर मंगिया भी खैर नहीं मिलती। मैं नहीं सी समझदी इन्हां पंक्तियों का अर्थ की है, पर अज मैनूं पता लगा इन्हां दी की कीमत है और इन्हां दा अर्थ की बनता है। इंसान जिंदगी च विचरदे होया कई बार
कुछ पंक्तियां हैं जिहड़ियां इंसान के दिल नूं दहला जांदियां हन। भावें वो पंक्तियां सुधारण होण, भावें गुरबाणी दियां होण ते भावें किसी टोटके के रूप च लिखियां होण, कई पंक्तियां का इंसान नूं पता उदों लगदा जदों उहदे नाल वापरदी। मैं अपने निजी तजर्बे चों तुहाडे नाल एक विचार साझे करदा हां। दास मोटरसाइकिल ते जा रहा सी, नाल मेरे ज्ञानी बलकार सिंह जी हन। मेथों छोटा ब्रदर सी मेरा, को 37 साल की उम्र च ओहदी मौत हो गई। एक ट्रक के पिछे आपां जा रहे हैं, ट्रक के पिछे लिखिया सी हुंदी वीरां नाल सरदारी। पढ़दे सार मेरियां चीकां निकल गईयां। ज्ञानी जी उन्होंने पूछा की होया? मैं क्या अज इस पंक्ति का अर्थ मैनू पता लगा कि यह पंक्ति का अर्थ की। जिंदगी च विचरदा है इंसान बड़ा कुछ सीखदा। सत संगत असी गुरु घर च सीखण वास्ते आए हाँ। इतिहास का मतलब ही यह है कि असी अपना जीवन जिहड़ा है गुरमत अनुसार किवें बतीत करना है। महाराणी जिंद कौरा के 36 पदार्थ पे हुंदे सन। वो नक बुलवटिया करती सी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आ नहीं पीना, वो नहीं पीना। केलियां दे पत्तियां दे उत्ते सड़े हुए चौल वेख के महाराणी जिंद कौरां दे अथरू त्रप त्रप वह तुरे। की कह रही है? शर्म करो साध संगत, इहो मैंने किया जा रहा है। रेशमी पोशाकां जेड़ी हर रोज पहनदी सी, रेशमी पोशाकां जेड़ी हर रोज पहनदी सी। पैरी है नी जुत्ती हो, जुत्ती ते उधार बोकलीरा दा पहले दाछ केवा। शाही महलों विच कदे रहिंदियां ची चरण सिंगा, सुत्तियां सरां दे च भेस है फकीरां दा। महाराणी जिंद कौरा ने वो चौल का एक दाना भी ना छड्या जिहड़े सड़े हुए सन। एक तो है कड़छी कु सन। हर हर दी दाल दे नाल उहनूं ये चौल अमृत वर्गे लगे। भुख लगी हुई सी। महाराणी जिंद कौरा ने केले दे पत्ते दे तो सारे ही चौल खा ले। वो पत्तल नूं गोमती ने एक पासे सुट दिता। हुण सरां दे अंदर लै गई। कह रही महाराणी साहबा माफ करना, मैं एक बेनती करनी चाहती हाँ। उन्हें आख्या गोमता दास
कहती महारानी साहबा तुहाडे गल पंजाबी सूट है, भावें कई जगह तो फटिया होया, वेखन तुसी मेरे वर्गे फकीर नहीं लगदे हो, पर पंजाबी सूट वाल वेख के कईयां दियां निगाहां तुहाडे उत्ते पै रहीआं हन। मैं कुछ मुसाफरां नूं गल्लां करदिआं होइआं भी सुणिआ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ कर रहे सन कि पंजाब की महारानी चुनार के किले च दौड़ चुकी है। महारानी साहबा हो सकता पुलिस आ जाए तुहानू पहचान लवे, गोमता फिर दस मैं की करा। कह लगे महारानी साहबा पंजाबी सूट उतार दिओ, मेरे को मलमल की एक धोती है जड़ियां साधनियां बनदियां हैं, तुसीं ओह धोती बन लो। महारानी जिंद कौर ने आख्या गोमता जिवें तू आखे, मैं अपने पुत नूं मिलण वास्ते दुनिया का हर भेस बना सकती हाँ। महारानी जिंद कौर ने अपने गल चों सूट उतारिया, उन्होंने सुटिया भी नहीं कि किसी तरह का सबूत किसी के हाथ ना आ जाए। ते गोमता वालों दिती हुई धोती महारानी जिंद कौर ने वो मलमल की धोती अपने तन के चार चफेरे लपेट मार लिए। महारानी जिंद कौर ने आख्या, कह लगे गोमता हुण मैनूं नींद आ रही है, मैनूं सौ लैण दे। उन्हें आख्या तुसीं सौं, मैं तुहाड़ियां लत्तां घुट देंदी हां। अख बचा के गोमता ने महारानी जिंद कौर दीयां लत्तां कुटियां। महारानी जिंद कौर नूं गूढ़ी नींद आ गई। उन्हें तरह तरह के सुपने वेखे, कदी सुपने च उसने दलीप नाल मलाप वेख्या, उन्हें अपने बाप का वेड़ा वेख्या ने लाहौर का शाही किला वेख्या। एक बार उसनूं सारे दुख भुल गए, पता ही ना लगा किहड़े वेले शाम पई, फिर रात पै गई और फिर दिन चढ़ गया। गोमती ने महारानी नूं लूण के जगाया, कह लगे महारानी साहबा दिन चढ़ गए, मुसाफरां दी आवाजाई वध गई है, सानू इत्थे बैठिया वेख के हो सकता कोई खबर ना पहुंचा देवे, सानू इत्थों जाना चाहिए, सानू हुण तैयारी कर लेनी चाहिए। पर गोमता ने आख्या, कह लगे महारानी साहबा पता नहीं किन्ना कुछ सफर, किते रस्ते च कुछ मिले खान नूं कि ना मिले, मुसाफरां दी लाइन लगी हुई है, पुजारी जी ने लंगर खोल दिता है, ते जे असीं कुछ खा लईए सफर चंगा बतीत हो जाएगा। महारानी जिंद कौर ने आख्या, गोमता जिस तरह कहंदी है, ये दोवें भैणां फिर लाइन विच लग गईयां, जिस लाइन विच मंगते खलोते हुए सन खाना लैण दे वास्ते। वो खाना लैके खाधा। हुण दोवां भैणां ने सलाह कीती। महारानी जिंद कौर ने आख्या, गोमता हुण जाना किधर नूं है, पंजाब वाल नूं जाना है? गोमता ने आख्या, महारानी साहबा नहीं, पंजाब नहीं, तुहानूं पंजाब की धरती ते किसी ने पैर नहीं रखन देना, तुसा गिरफ्तार हो जाना। तो महारानी साहबा एक मैं बचन आखा, मैं कहना तो नहीं चाहती पर वो गल मैं तुहानूं दसना चाहती है, हुण तुहाडा राज पाक पंजाब की धरती दे उत्ते नहीं रहा, तुहाडे पुत्र नूं तख्त तो दस्तबरदार कर दिता गया। गल्लां मैं इत्थे सुनियां हन, जे असीं पंजाब गए गिरफ्तार हो जावांगे, गोमता फिर किधर नूं जाना है? महारानी साहबा सानूं नेपाल जाना चाहिए, नेपाल जाके शरण मंगनी चाहिए, उत्थे बैठ के कोई चारा जोई करनी चाहिए ताकि तुहाडा मां पुत्तां दा मिलाप हो जाए। महारानी जिंद कौर हस के कह लगी, गोमता समा किड्डी छेती बदलदा है, कदी मैं हदायत करदी सा तू अमल करदी सा, हुण मैनूं तू हदायतां कर रही है, मैं अमल करांगी। हाथ जोड़ के कह लगी, महारानी साहबा माफ करना, मैं हदायत नहीं कर रही, मैं तुहानूं सलाह दे रही हूं और सानूं ये करना पैना। उन्हें आख्या, ठीक है फिर जिवें तेरी मर्जी। ये दोवें ही महारानी जिंद कौर ते गोमता रामनगर तो जौनपुर ते जौनपुर तो आजमगढ़ वाल नूं किवें जा रही ने, वो सारे दा सारा वेरवा काल रूप विच ढाडी सिंह तुहाडे चरनां च रखने ने। सुनो सत्संग।
20 ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, 20 ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, 20 ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, 20 ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, 20 ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀ ਹੋ ਬਈ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘਾ, ਹਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘਾ, ਹਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ 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 ਹਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘਾ। ਵੱਲ ਜੰਗਲਾ, ਵੱਲ ਜੰਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਲ ਜੰਗਲਾ, ਵੱਲ ਜੰਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਧਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਮਤਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੌਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਮਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਜ਼ਾਇਨਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਗੋਮਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ
ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਰਿਆ ਗੰਧਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭੇਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਉਂ ਬਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। खंड
जंगल के रस्ते तुरे जांदे जांदे एक साधु इन्हां नूं मिल गए। महाराणी जिंदा जिथे बैठदी है साधु भी उत्थे हटवा होकर बैठ जाता है। जे तुरन लगदियां ने वह भी तुर पैंदा है। महाराणी जिंद कौर नूं शक पै गया, कहण लगे गोमता होवे ना होवे ते अंग्रेज दा CID दा बंदा है, इन्हें सानू किते ना किते गिरफ्तार करा देना। गोमता ने आख्या, कहण लगे महाराणी साहबा फिर इहदे कोलों खैड़ा किवें छडाया जावे? उन्हें आख्या मेरी भैन तू इत्थे बैठ, मैं इहदे नाल गल करदी। अपने हाथ च अंगूठी उतार के महाराणी जिंद कौर ने मुट्ठी च फड़ लई। दरिया गंधक के कंढे दे उत्ते एक पत्थर दे उत्ते साध बैठा है CID दा रिपोर्टर। महाराणी जिंद कौर ने जाके अंगूठी विखा के कहन लगे महात्मा जी सानू जंगल च फिरदे फिरदे अंगूठी मिली है, ये पछाणो भला अंगूठी किसदी है? ये सोने दी है या किसी होर धातु दी है? अंगूठी वेखदे सार उहदे चेहरे दे उत्ते चमक आ गई। वो समझ गया कि जां ते महाराणी जिंद कौर खुद है जाओ इस इलाके च फिर रही है। वो इन्ना खुश होया, उन्होंने इस गल का चेता ही भुल गया कि मैं कित्थे बैठा होया। उन्होंने चाह चढ़ गया हुण महाराणी नूं गिरफ्तार करा के इनाम प्राप्त करांगा। इन्हां सोचां च गवाचा होया सी जां शेर दी बच्ची ने उहदी हिक च जोर दी लत मारी तैनूं दरिया गंधक दे च पिठ पर ने सुट दिता। वो लोटनियां खान लगा, तेज वहा पानी दा गोते खान लगा। फड़ के बांह गोमती दी महाराणी जिंद कौर ने आख्या गोमता दौड़। उन्हें आख्या महाराणी साहबा हुणे मर जाएगा। उन्हें आख्या नहीं ये मरने लगा, ये CID दा बंदा है, बड़े ट्रेंड होया करते हैं, ये बड़े तारू होया करते हैं, तर के पार लग जाना है। इस तो पहला कि जाके किसी थाने च साडी रिपोर्ट देवे, सानू इथों दूर निकल जाना चाहिए। हुण इन्हां ने दौड़ना शुरू किया है। इन्हां दी दौड़ का वर्णन मैं हुण कल दे दीवान च इथों तुहाडे नाल प्रारंभ करांगा। आज सरबत संगत ने बहुत मन करके सतगुरां दे पावन चरनां च हाजरियां लवाइयां ने। दास ने दिलों तुहाडे नाल ये इतिहास की लड़ी नूं साझा करन दी कोशिश की है। फिर भी होइयां भुलां दी मैं तुहाडे पासों खिमा मंगनी चाहुंदा हां। अगे वास्ते तुसां ने चेता सुधार बख्शिश करना। सारियां संगतां दा कोटान कोट धन्नवाद। ढाडी सिंघां पासों 6 पौड़ियां नाल सजदा जाप सरवण करिए ते दास नूं फतेह बुलाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।